یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فتاوی رضویہ اور مولانا احمد رضا خان صاحب کے تحقیقات کے اندر تناقضات اور کانٹرڈکشن پائے جاتے ہیں جن کو سالو کرنے کی ضرورت۔ میں 2 مثالوں سے اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ پہلی مثال آپ کو فتاوی رضویہ میں ملے گی کہ مولانا احمد رضا خان صاحب فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کفر پر علماء حرمین شریفین نے فتویٰ دیا ہے، لیکن آپ حسام الحرمین اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں بھی مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر نام لے کر کفر کا فتویٰ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ کے اندر مولانا احمد رضا خان صاحب علماء دیوبند کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن خود دوسری کتابوں میں کہتے ہیں کہ میں ان کی تکفیر کو پسند نہیں کرتا۔ تو ان تعارضات کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فتاوی رضویہ کا بہت ڈیٹیل سے مطالعہ کریں۔ سب سے پہلے میں ان فتاووں کو آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، پھر اس پر اپنا تبصرہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے سامنے فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 211 ہے۔ اس میں سنی اور وہابی کے کانٹیکسٹ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مولانا احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں، ایسی جگہ تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ رشید احمد گنگوہی و اشرف علی تھانوی و قاسم نانوتوی اور محمود حسن دیوبندی و خلیل احمد امبیٹھی اور ان سب سے گھٹ کر ان کے امام اسماعیل دہلوی، یہاں نام لے کر انہوں نے کہا کہ اسماعیل دہلوی اور ان کی کتابوں براہین قاطعہ، تحذیر الناس، حفظ الایمان، تقویۃ الایمان، ایذاء الحق کو کیسا جانتے ہو؟ یعنی کوئی آدمی علماء دیوبند کے بارے میں علماء حرمین شریفین نے جو فتوے دیے ہیں اس کو مانتا ہے تو وہ سنی ہے، وہ نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر۔ چنانچہ آگے لکھتے ہیں، ان لوگوں کی نسبت علماء حرمین شریفین نے جو فتوے دیے ہیں انہیں باطل سمجھتے ہو یا حق مانتے ہو؟ یعنی اس سے پوچھا جائے گا کہ علماء حرمین شریفین نے علماء دیوبند کے بارے میں، اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو فتوی دیے ہیں اس کو تو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ تو اس فتوے سے معلوم ہو رہا ہے کہ علماء حرمین شریفین نے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اسی طرح جلد 29 فتاوی رضویہ کی صفحہ نمبر 229 میں بھی اسی کا سملر وہابی اور سنی کے کانٹیکسٹ میں ایک سوال ہوا تو اس کا جواب دیتے ہوئے مولانا احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں، نیز اسماعیل دہلوی و تقویۃ الایمان و براہین قاطعہ و تحذیر الناس و حفظ الایمان اور ان کے مصنفوں کی نسبت دریافت کیا جائے، اگر سب باتوں کے جواب میں وہی کہے جو علماء حرمین شریفین نے تحریر فرمایا تو ضرور اسے سنی سمجھا جائے گا۔ یعنی اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء حرمین شریفین نے جو فتویٰ دیا ہے اس کو ایکسپٹ کرتا ہے تو وہ سنی ہے، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے تو وہ سنی نہیں ہے۔ اس فتوے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے حساب سے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر علماء حرمین شریفین نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ لیکن آپ حسام الحرمین اٹھا کر دیکھ لیں، پوری حسام الحرمین میں نام لے کر کہیں بھی مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ موجود ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس کانٹرڈکشن کو کیسے سالو کریں گے؟ صرف یہ ایک مثال نہیں، دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے سامنے حسام الحرمین ہے، صفحہ نمبر 106 اور 107۔ اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نقل کرتے ہیں، یہ طائفے جن کا تذکرہ سوال میں واقع ہے، غلام احمد قادیانی اور رشید احمد اور جو اس کے پیروں ہیں جیسے خلیل احمد امبیٹھی اور اشرف علی وغیرہ، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ یعنی علماء دیوبند کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، نہ شک کی مجال، بلکہ جو ان کے کفر میں شک کرے، بلکہ کسی طرح کسی حال میں انہیں کافر کہنے میں توقف کرے، اس کے کفر میں بھی شک نہیں۔ یعنی جو علماء دیوبند کو مسلمان سمجھتا ہے یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے، کسی بھی حال میں کسی بھی طرح شک کرے تو بھی وہ کافر ہو جائے گا، اس کے کفر میں بھی شک نہیں ہے۔ یہی بات مولانا احمد رضا خان صاحب فتاوی افریقہ کے اندر 104 پر بھی لکھتے ہیں، اور آگے جا کر فتاوی افریقہ 109 پر یہاں تک لکھتے ہیں کہ جو انہیں کافر نہ کہے، یعنی علماء دیوبند کو جو کافر نہ کہے، جو ان کا پاس لحاظ رکھے، جو ان کی استادی یا رشتے یا دوستی کا خیال کرے، وہ بھی انہی میں سے ہے، انہی کی طرح کافر ہے، قیامت کے دن ان کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا۔ تو فتاوی افریقہ کے اندر بڑے ہی کلیئر انداز میں لکھتے ہیں کہ علماء دیوبند کو جو مسلمان مانتا ہے یا ان کو کافر کہنے میں توقف کرتا ہے، توقف کا معنی ہے جھجک محسوس کرنا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو حسام الحرمین اور فتاوی افریقہ کے اندر اتنی صراحت کے ساتھ مولانا احمد رضا خان صاحب علماء دیوبند کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن یہی مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں جو تمہید ایمان کے صفحہ 43 پر لکھتے ہیں، سبحان الصبح میں بالآخر صفحہ 80 تباول پر یہی لکھا ہے کہ حاشا للہ، حاشا للہ، ہزار ہزار بار حاشا للہ، میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا، یعنی علماء دیوبند کی تکفیر کو میں پسند نہیں کرتا، ان مقتدیوں یعنی مدعیان جدید کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں۔ حسام الحرمین میں لکھ کر آ رہے ہیں کہ جو ان کے کفر میں شک کرے یا توقف کرے وہ بھی کافر ہے، لیکن تمہید ایمان کے صفحہ 43 پر لکھتے ہیں کہ میں ان کو مسلمان جانتا ہوں۔
हूँ, मैं इनकी तकफीर पसंद नहीं करता। सुबहान सुब्बुह का इन्होंने हवाला दिया है। हमने सुबहान सुब्बुह निकाली तो सुबहान सुब्बुह के सफ़ा 80 पर एग्जैक्ट वही इबारत मौजूद है। मौलाना अहमद रज़ा खान साहब लिखते हैं, हाशा लिल्लाह, हजार हजार बार हाशा लिल्लाह, मैं हरगिज़ उनकी तकफीर पसंद नहीं करता। इन मुक्तदियों यानी मुद्दईयान जदीद को तो अभी तक मुसलमान ही जानता हूँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी बात सही है। हुसामुल हरमैन में जो लिखा है कि उलमाए देवबंद काफिर हैं, जो उनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है, उनके कुफ्र में तवक्कुफ करे किसी भी हाल में, किसी भी तरह उनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है, वो बात सही है? या तमहीद ईमान और सुबहान सुब्बुह में जो लिख रहे हैं कि मैं उनकी तकफीर पसंद नहीं करता, ये जवाब सही है। तो अब तीन ही सूरतें निकल कर आएंगी। या तो हम कहें कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब को भूल हो गई है, उन्होंने पहली किताबों में क्या लिखा है वो भूल गए हैं। या फिर हम ये कहें कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब की किताबों के अंदर तहरीफात हो चुकी हैं, लोगों ने गड़बड़ कर दी है। या फिर हम ये कहें कि यहाँ कुफ्र का माना कुछ और है, वहाँ कुफ्र का माना कुछ और है। तीन पॉसिबिलिटीज के अलावा चौथी कोई पॉसिबिलिटीज मेरे ख्याल में नहीं बनती। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने झूठ बोला है या उनको भूल हो गई है, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, एक नहीं दो तीन जगह वो अलग अलग बातें लिख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो छुपी हुई होगी। इसी तरह हम ये भी नहीं कह सकते कि इन किताबों के अंदर तहरीफात हुई है, क्योंकि तहरीफात को साबित करने के लिए हमारे पास कोई दलील फिलहाल मौजूद नहीं है। तो तीसरी बात पक्की हो जाती है कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब जहाँ कुफ्र की बात करते हैं वहाँ उनकी मुरादें अलग अलग होती हैं। एक जगह एक मुराद से लिखते हैं, एक जगह दूसरी मुराद से लिखते हैं। जब हम इस पर्सपेक्टिव से फतावा रिजविया का मुताला करते हैं तो फतावा रिजविया जिल्द 15 सफ़ा 236 पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग इबारत हमें मिलती है। इससे बहुत कुछ समझा जा सकता है। मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, लंबी इबारत है, मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा दूंगा, मैं उसकी एक इख्तिबास, एक कोट आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। मौलाना अहमद रज़ा खान साहब लिखते हैं, अब तक यही तहक़ीक़ फरमा रहे हैं कि लुज़ूम और इल्तिज़ाम में फ़र्क है। लुज़ूम अलग है, इल्तिज़ाम अलग है। अक़वाल का कलिमा कुफ्र होना और बात, और काइल को काफिर मान लेना और बात है। हम एहतियात बरतेंगे, सुकूत करेंगे, जब तक ज़ईफ़ सा ज़ईफ़ एहतमाल मिलेगा हुक्म कुफ्र जारी करते डरेंगे। मौलाना अहमद रज़ा खान साहब इस इबारत के अंदर कुफ्र लुज़ूम और कुफ्र इल्तिज़ाम की बात कर रहे हैं। तो जब कुफ्र लुज़ूम और कुफ्र इल्तिज़ाम की बात को क्लियरली हम नहीं समझेंगे, उस वक्त तक ये इबारतें हम समझ नहीं सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी तफसीर कुफ्र लुज़ूम और कुफ्र इल्तिज़ाम के ऊपर हम डाल लेते हैं। देखिए, एक होता है लाजिम होना और एक होता है इल्तिज़ाम करना। लाजिम होने का मतलब है, मिसाल के तौर पर ज़ोहर का वक्त आया तो ज़ोहर की नमाज मेरे ऊपर खुद ब खुद लाजिम हो जाएगी। मुझे ज़ोहर की नमाज को अपने ऊपर लाजिम करने की ज़रूरत नहीं, ज़ोहर की नमाज खुद ब खुद मेरे ऊपर ज़रूरी हो जाएगी। इसी तरह रमज़ान का महीना आया तो रमज़ान के रोज़े मेरे ऊपर खुद ब खुद लाजिम हो जाते हैं। इसे कहते हैं लुज़ूम। इल्तिज़ाम का मतलब यह है कि एक चीज़ मेरे ऊपर लाजिम नहीं हो रही है, मेरे ऊपर ज़रूरी नहीं हो रही है, मैं खुद अपने ऊपर उसे ज़रूरी कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर बैठे बैठे मैंने मन्नत मानी कि मेरा फलाना काम हो गया तो मैं 3 रोज़े रखूंगा, तो ये 3 रोज़े मेरे ऊपर लाजिम नहीं थे, मैंने उसको अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। तो जो चीज़ खुद से लाजिम हो जाती है उसे लुज़ूम कहते हैं। जो चीज़ खुद से लाजिम नहीं होती हम उसको अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं, उसे इल्तिज़ाम कहते हैं। जब ये बात क्लियर हो गई तो अब चलें कुफ्र लुज़ूम और कुफ्र इल्तिज़ाम की तरफ। कुफ्र के 2 फेसेस हैं। पहला फेज ये है कि अगर किसी बंदे के मुंह से कोई इबारत निकले या किसी बंदे के कलम से कोई इबारत निकले, तो अगर उसके अंदर कुफ्र लाजिम हो रहा है तो हम उसे पहले फेज के हिसाब से कहेंगे कि इससे कुफ्र लाजिम हो रहा है, यानी खुद ब खुद इससे कुफ्र आ रहा है। अब उस बंदे से पूछा जाएगा कि तेरा क्या इंटेंशन है, तूने किस अंदाज से इस इबारत को कहा है, तेरा क्या इरादा है। अगर वो कुफ्र के इरादे से उस बात को कह रहा है तो अब वो कुफ्र को अपने ऊपर लाजिम करने वाला है, अब वो कुफ्र को कमिट करने वाला हो जाएगा। ये सेकंड फेज है कुफ्र का, इसी को कहते हैं कुफ्र इल्तिज़ाम। तो जब कुफ्र लुज़ूम आता है तो फिर उसमें पॉसिबिलिटीज क्रिएट की जाती हैं। ये उलमा का मुत्तफ़िक़ा उसूल है कि अगर किसी के इबारत में कुफ्र लाजिम आ रहा है, वो खुद से कुफ्र का इल्तिज़ाम नहीं कर रहा है, वो खुद से कुफ्र को कमिट नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी सेंटेंस से, उसके फ्रेज से कुफ्र लाजिम आ रहा है, तो फिर उसमें हम पॉसिबिलिटीज ढूंढेंगे। अगर 99% पॉसिबिलिटी हो कुफ्र की, 1% पॉसिबिलिटी हो इस्लाम की, तो उलमा इस्लाम ने लिखा है कि उसकी इस्लाम को तरजीह दी जाएगी, प्रेफर किया जाएगा, उसके कुफ्र की तरफ नहीं देखा जाएगा। सो कुफ्र की पॉसिबिलिटीज को साइड पर कर कर इस्लाम की पॉसिबिलिटी को चूज किया जाएगा। और ये रेशियो 99:1 का रेशियो है, यानी 99 अगर कुफ्र के पर्सपेक्टिव्स हैं और 1
पर्सपेक्टिव इस्लाम का है तो उसी इस्लाम के पर्सपेक्टिव को लिया जाएगा। और ये अमल सिर्फ हम नहीं करते, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने खुद किया है। चुनांचे फतावा रिज़विया की जिल्द 15 में उन्होंने जो रिसाला लिखा है अल-कौकब अश-शहाबिया, आप उसको पूरा पढ़ जाइए। उस पूरे रिसाले में मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने 78 वजूहात से मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह पर कुफ्र लुज़ूम की बात की है। लेकिन आखिर में आकर लिखते हैं कि मैं उनको काफिर डिक्लेयर नहीं करता क्योंकि कुफ्र इल्तिज़ाम प्रूवन नहीं है। तो मालूम हुआ कि कुफ्र लुज़ूम अलग है, कुफ्र इल्तिज़ाम अलग है। कुफ्र लुज़ूम कुफ्र का पहला फेज़ है और उस फेज़ के अंदर एहतिमालात और पॉसिबिलिटीज़ निकाली जाएंगी। अगर एक भी पॉसिबिलिटी इस्लाम की मौजूद नहीं है तो फिर उस पर कुफ्र इल्तिज़ाम सेकेंड फेज़ आता है। जब कुफ्र लुज़ूम और कुफ्र इल्तिज़ाम की ये बात क्लियर हो गई तो अब आगे बढ़ते हैं। कुफ्र लुज़ूम जहां भी होता है वहां पॉसिबिलिटीज को देखा जाएगा। मिसाल के तौर पर एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम किसी बंदे के बारे में कहें कि तेरा ये फ्रेज कुफ्र वाला फ्रेज है, वो बंदा आगे से कहे कि मैंने ये फ्रेज कहा ही नहीं, तो कुफ्र लुज़ूम बातिल हो जाता है। पहला फेज ही खत्म हो जाता है। दूसरा फेज की तो बात छोड़ें, वो बाद में आएगा, पहला फेज ही खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर किसी बंदे की इबारत के बारे में ये पूछा जाए कि तेरे इस इबारत से कुफ्र लाजिम हो रहा है और वो बंदा आगे से एक्सप्लेन करता है कि मेरी इबारत का ये मतलब नहीं है, मेरा इंटेंशन ये नहीं है, मेरा इंटेंशन ये है, और वो सही मानों में एक जस्टिफिकेशन देता है, एक्सप्लेनेशन देता है, तो फिर कुफ्र लुज़ूम खत्म हो जाता है। इसी तरह किसी इबारत के बारे में ये कहा जाए कि ये इबारत फलाने बंदे की है या नहीं, डाउट क्रिएट हो जाए, तो इस पॉसिबिलिटी की वजह से भी कुफ्र लुज़ूम खत्म हो जाता है। या और कोई भी एहतिमाल पैदा हो जाए जिसकी वजह से उस इबारत के अंदर हमें डाउट क्रिएट हो जाए, तो फिर उसके ऊपर हम कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते। कुफ्र लुज़ूम यानी कुफ्र का पहला फेज ही खत्म हो जाएगा। जब पहला फेज खत्म हो जाता है तो दूसरे फेज की तो बात छोड़ें, वो तो आएगा ही नहीं। अब आए फतावा रिज़विया और मौलाना अहमद रज़ा खान साहब की दूसरी तहकीकात की तरफ। मौलाना अहमद रज़ा खान साहब एक जगह उलमाए देवबंद की तकफीर करते हैं और दूसरी जगह कहते हैं कि मैं उनकी तकफीर नहीं करता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के पॉसिबल तरीके 4 ही हो सकते हैं। नंबर 1, या तो हम कहें कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब से भूल हो गई है, हमने पहले ही कह दिया है कि वो बड़े आदमी हैं, हम उनके बारे में ये बात नहीं कर सकते, सो ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। दूसरी सूरत यह है कि हम ये कहें कि अहमद रज़ा खान साहब की किताबों के अंदर तब्दीलियाँ तहरीफात हो चुकी हैं, इसकी हमारे पास कोई दलील मौजूद नहीं है, लिहाजा हम ये दावा भी नहीं कर सकते। तीसरी सूरत यह है कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब की पूरी इबारतों में कुफ्र से कुफ्र इल्तिज़ाम मुराद है, तो फिर ये आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएंगी और ये बातें हल नहीं होंगी कि एक जगह तो ये कहते हैं कि जो उनके कुफ्र में शक करे, किसी भी हाल में किसी भी तरह उनको काफिर मानने में तवक्कुफ करे, वो भी काफिर हो जाता है, लेकिन दूसरी जगह कहते हैं कि मैं इनकी तकफीर नहीं करता। तो अगर दोनों जगह कुफ्र इल्तिज़ाम मुराद होता तो फिर बात पलटकर मौलाना अहमद रज़ा खान साहब की तरफ आ जाती है कि वो खुद काफिर ठहरेंगे। तो तीसरी सूरत भी पॉसिबल नहीं है, हम इसको कुफ्र इल्तिज़ाम नहीं मान सकते हैं। तो चौथी सूरत पक्की है कि जहां जहां मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने उलमाए देवबंद पर या इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह पर कुफ्र का फतवा लगाया है, वो कुफ्र लुज़ूमी के एतबार से लगाया है, और जहां उन्होंने कुफ्र का इनकार किया है वहां कुफ्र इल्तिज़ामी के एतबार से इनकार किया है। और हमने देख लिया कि उलमाए देवबंद की इबारतों के अंदर कुफ्र लुज़ूम भी साबित नहीं होता, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो 5 इबारतें पेश की हैं उनमें से पहली इबारत यह है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये उलमाए देवबंद की किसी भी किताब के अंदर ये इबारत मौजूद नहीं है। जब ये इबारत मौजूद नहीं है तो कुफ्र लुज़ूमी लाजिम ही नहीं आएगा। कुफ्र इल्तिज़ामी तो छोड़िए, वो दूसरा फेज है, कुफ्र लुज़ूमी भी लाजिम नहीं आएगा। बाज़ लोग कमेंट्स में आकर ये कहते हैं कि फतावा रशीदिया के सफ़ा नंबर 19 पर ये इबारत मौजूद है, फतावा रशीदिया के किसी सफ़े के अंदर ये इबारत मौजूद नहीं है। ये सरासर उलमाए देवबंद पर बुहतान है, उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। सो पहली इबारत फारिग हो गई। दूसरी इबारत उन्होंने ये पेश की थी कि शैतान का इल्म गैब कुरान से साबित है, ये भी किसी किताब के अंदर मौजूद नहीं है, तो कुफ्र लुज़ूमी इसमें भी लाजिम नहीं आती। तीसरी इबारत इन्होंने हिफ्जुल ईमान की पेश की थी कि हिफ्जुल ईमान के बारे में हमने सही एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में दे दिया है, सो यहाँ भी कुफ्र लुज़ूमी खत्म हो गया। चौथी इबारत इन्होंने तहज़ीरुन नास की पेश की थी। तहज़ीरुन नास के बारे में हमने क्लियरली बता दिया था कि तहज़ीरुन नास की सही एक्सप्लेनेशन मौजूद है। तहज़ीरुन नास में जो क़ज़िया इस्तेमाल किया गया है वो क़ज़िया फ़र्ज़िया है, वो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, लिहाजा उसको हम असल नहीं मान सकते। सो चौथी इबारत भी फारिग हो गई। तो कुफ्र लुज़ूमी की जितनी बातें आई थी वो सारे कुफ्र लुज़ूमी की बातें भी जब खत्म हो गई तो फतावा रिज़विया की रोशनी में उलमाए देवबंद काफिर नहीं हो सकते। अगर कोई फतावा रिज़विया की रोशनी में उलमाए देवबंद को काफिर करना चाहता है तो मौलाना अहमद रज़ा खान साहब की इन इबारतों के दरमियान जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी उस पर आती है। अब एक सवाल बाकी बच जाता है कि अगर मौलाना अहमद रज़ा खान साहब कुफ्र इल्तिज़ाम और कुफ्र
लुज़ुम का फ़र्क करके फतवे लिख रहे हैं, तो फिर इतनी सख्ती से मन शक्क फी अज़ाबिही व कुफ़रिही फ़क़द कफ़र उन्होंने क्यों लिखा है? तो इसका जवाब मेरे पास मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब के मिजाज में शिद्दत थी, उस शिद्दत की वजह से उन्होंने मन शक्क फी अज़ाबिही व कुफ़रिही फ़क़द कफ़र के अल्फाज लिख दिए हैं, वरना वहाँ लुज़ूमी कुफ्र मुराद था और जहाँ उन्होंने काफिर कहने से इनकार किया था वहाँ कुफ्र इल्तिज़ामी मुराद था। मेरी ये बातें अगरचे टेक्निकल हैं, मुझे मालूम है कि आम लोगों को समझने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं ये उन उलमा के लिए वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ जो स्टेजों पर आकर तो ये दावा करते हैं कि हम इस्लाह चाहते हैं, हम इत्तिहाद चाहते हैं, हम इत्तिफाक चाहते हैं, लेकिन अपनी किताबों के अंदर जो शिद्दत पसंदी मौजूद है, अपनी किताबों के अंदर जो एक्सट्रीमिज़म उन्होंने रखा हुआ है, जब तक उसको नहीं निकालेंगे उस वक़्त तक ये इत्तिहाद और इत्तिफाक कैसे हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इत्तिहाद और इत्तिफाक का तरीक़ा ये है कि हम इन शिद्दत पसंदी वाले नज़रिया से बालातर होकर उम्मत की पर्सपेक्टिव में देखें और कुरान और सुन्ना को अकाबिर की रोशनी में, सलफ़ की रोशनी में समझने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ये सारे मसले सॉल्व हो सकते हैं। तो बात साफ़ हो गई, फतावा रिज़विया की रोशनी में उलमाए देवबंद को काफिर नहीं कह सकते। अगर फतावा रिज़विया की रोशनी में उलमाए देवबंद को काफिर कह रहे हैं तो फिर ये कुफ्र का फतवा पलट कर मौलाना अहमद रज़ा खान साहब पर भी लौटेगा, उसका जवाब कोई भी मौजूद नहीं है। बस जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।